ऑर्डर ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पोर्ट से आए, डच से पानी में उतरे। पोर्ट से आए, डच से पानी में उतरे, फिर इंग्लिश बोलना शुरू किए और फिर दाना पानी और फ्रेंच फ्राइज खाए। पोर्ट से आए, डच से पानी में उतरे, फिर इंग्लिश बोलना शुरू किए और दाना पानी और फ्रेंच फ्राइज खाए। पोर्टुगीज 1498 वास्को डी गामा। पोर्टुगीज 1498 वास्को डी गामा। इंग्लिश पोर्टुगीज then Dutch 1602, Dutch 1602, Dutch 1602 में इंग्लिश आइटल 1608, इंग्लिश आइटल 1608 और फ्रेंच अड़सता है, फ्रेंच 68 का फ्रेंच किस नहीं अड़सता है, स्मूथ रहता है, फ्रेंच किस नहीं अड़सता है, स्मूथ रहता है, इसलिए 1668 फ्रेंच, 1668 फ्रेंच, 1668 फ्रेंच, 1668 फ्रेंच। पोर्टुगीज के बारे में देखेंगे तो पोर्टुगीज पोर्टली में बांध कर टोबैको लाए और कुछ कुछ करके पोर्टली में बांध कर टोबैको लाए। पोर्टुगीज पोर्टली में बांध कर टोबैको लाए और कुछ कुछ करके काजू खाए, कुछ कुछ करके काजू खाए, कुछ कुछ करके काजू खाए, कुछ कुछ करके कागज कागज खाए। पोर्टुगीज पोर्टुगीज पोर्टली में बांध कर पोर्टली में बांध कर टोबैको लाए, पोर्टुगीज पोर्टली में बांध कर टोबैको लाए और कुछ कुछ करके काजू खाए और कुछ कुछ करके काजू खाए। अराइवल ऑफ पोर्टुगीज पोर्ट और यूज पोर्टुगीज पोर्टली में बांध के टोबैको लाए और कुछ कुछ करके काजू खाए। Portuguese were the first to introduce tobacco and cashew nut in India. Portuguese were the first to introduce tobacco and cashew nut in India. Portuguese also the first to come in last. Portuguese जो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, जो सबसे पहले आए सबसे लास्ट में गए, जो सबसे पहले आए सबसे लास्ट में गए। Portuguese also the first to come and last to go. Portuguese सबसे पहले और सबसे लास्ट में गए, Portuguese सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, Portuguese सबसे पहले और सबसे लास्ट में गए। Vasco da Gama 1498 Vasco da Gama 1498 to discover Vasco was also the first to discover a sea route to India. पहले तो सी रूट था इंडिया के लिए, लेकिन वो गल्फ साइड से था, तो गल्फ आफ्टर मिडावल पीरियड गल्फ वाला सी रूट बंद हो गया, वहाँ से लोग आने नहीं देते थे, इसलिए नया सी रूट खोजा गया वाया अफ्रीका। Vasco da Gama, he was also the first to discover the sea route to India. Vasco da Gama, he was also the first to discover sea route to India. Not the first, but first in sense of modern period. He was a Portuguese explorer who came to Calicut. He came to Calicut during the King Jamarin, during the rule of King Jamarin. Calicut आया during the rule of King Jamarin, then ruler of Hindu. Vasco da Gama 1498 came to Calicut during the rule of King Jamorin. Okay. Francisco de Almeida, first governor of Portugal, first governor. He was the first governor of first Portuguese viceroy of India, not governor, viceroy. First Portuguese viceroy of India, first Portuguese viceroy of India, first Portuguese viceroy of India, Almeida, Francisco de Almeida. 1498 में वास्को आया और 1505 में आफ्टर 7 years अल्मेडा आया, आफ्टर 7 years अल्मेडा आया, आफ्टर 7 years अल्मेडा आया। He was the first Portuguese viceroy of India, was the first Portuguese viceroy of India, was the first Portuguese viceroy of India, was the first Portuguese viceroy of India. Almeida was the first Portuguese viceroy of India, Portuguese viceroy of India. उसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी जैसे कैटरल सिस्टम भी कहते थे, जिसमें कि which was a trade license system that allowed Portuguese to control trade in Indian Ocean. ट्रेड कंट्रोल लाइसेंस सिस्टम था, ब्लू वाटर पॉलिसी कार्टर सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी कार्टर सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी कार्टर सिस्टम। ओके, ब्लू वाटर पॉलिसी Almeida was the first viceroy, Portuguese viceroy of India, and Albuquerque was the second viceroy of India. Albuquerque was the second viceroy of India. Albuquerque, he was contemporary to KDR Krishnadeva. He was contemporary to KDR Krishnadeva. KDR allowed him to build fort at Bhatkal. KDR allowed Albuquerque to build fort at Bhatkal. Albuquerque also helped KDR Krishnadeva to defeat Bahmani kingdom, and KDR gave Goa to him, and KDR gave Goa to him. Albuquerque was the second Portuguese viceroy of India. Came in 1509.
1497 वास्को आया. The first viceroy Almeida came in 1505 after 7 years, and after 4 years Albuquerque came. Albu नाम से पता चल रहा है. Blue means blue है पानी. The water, blue water, Goa. Blue Goa. Blue है पानी. Blue. तो blue Goa पानी. Blue Goa पानी. Blue है पानी Goa. He was the second Portuguese governor of India. He was the second Portuguese guy to the Albuquerque. He captured Goa in 1510 और he captured Goa और इसने गोवा कैप्चर किया 1510 में. 1510 Albuquerque captured Goa and abolished Sati. नेक्स्ट डच जो पोर्ट उतर कर डच से पानी में उतरे. डच जो थे डच के लोगों को जो नीदरलैंड के लोगों को डच अराइवल ऑफ डच से उतरा और पानी मछली पकड़ लिया. डच से उतरा अराइवल ऑफ डच. तो डच से उतरा मछली पकड़ लिया. डच से उतरा पोर्ट से आया. डच से उतरा पानी में मछली पकड़ लिया. डच से उतरा पानी में मछली पकड़ लिया. डच से उतरा मछली पकड़ लिया. डच refers to people of Netherlands. Dutch refers to the people of Netherlands. Dutch East India Company was formed in 1602. Dutch East India Company was formed in 1602. Dutch East India Company was formed in Dutch East India Company was formed in 1602. Dutch East India Company was formed in 1602. Dutch East India Company was formed in 1602. So after 4 years, 1498 plus 4, that is 104, 1602. Dutch set up their first factory at Masulipatam. Dutch से पानी मतलब मछली पकड़ ली. Dutch set up their first factory at Masulipatam. Dutch set up their first factory at Masulipatam. Dutch छप से पानी मतलब मछली पकड़ ली. Dutch set up their first factory at Masulipatam, आंध्र प्रदेश. को मछली पसंद नहीं आया. ओके. नेक्स्ट केम इंग्लिश जो थे. इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर भारत की सूरत बदल दी. इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर इंग्लिश और फ्रेंच के संदर्भ में है कि इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर भारत का सूरत बदल दी. इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर भारत का सूरत बदल दी. इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर भारत का सूरत बदल दी. इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर भारत का सूरत बदल दी. इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर भारत का सूरत बदल दी. इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर भारत का सूरत बदल दी. इंग्लिश का फ्रेंच भाषा बोलकर भारत का सूरत बदल दी. इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर भारत का सूरत बदल दी. इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर भारत का सूरत बदल दी. इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलकर भारत का सूरत बदल दी. और अराइवल ऑफ इंग्लिश को मछली नहीं पसंद है. वो मछली पसंद नहीं आया. तो इंग्लिश को मछली पसंद नहीं आया. इंग्लिश लव्स मीट सो दे डोंट लाइक फिश. इंग्लिश लव्स मीट सो दे डोंट लाइक फिश. तो मछली पसंद नहीं आया. इंग्लिश 1608 में English came to India, but their company was set up in 1600. But their company was set up in 1600. East India Company received a royal charter from Queen Elizabeth I to trade in India. East India Company received a royal charter in 1600. East India Company in 1600. 1608 में इंग्लिश भारत में आया, बट उनकी कंपनी पहले स्थापित हो गई थी 1600 में. ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड a royal charter from Queen Elizabeth. East India Company received a royal charter from Queen Elizabeth I to trade in India. East India Company received a royal charter. East India Company received a royal charter from Queen Elizabeth I to trade in India. 1608 में जब आए, 1608 में जब इंग्लिश आए तो हॉकिंस आया.
William Hawkins arrived in the court of Jahangir. William Hawkins arrived in the court of Armenian. तो उसने 400 का मंसूब लिया। तो जहांगीर ने तो ट्रेड राइट लेने आया था, तो ट्रेड राइट तो मिला नहीं। तो जहांगीर ने उसे 400 का मंसूब दिया प्लस 1 अर्मेनियन दिया। 400 का मंसूब दिया और एक अर्मेनियन दिया। 400 का मंसूब दिया और अर्मेनियन दिया। 1608 William Hawkins 1608 when English came to India first, William Hawkins came in the court of Jahangir where he asked for the trade rights but Jahangir gave him a mansab of 400 annually 400 annual mansab plus 1 Armenian girl plus 1 Armenian girl. William Hawkins 1608 1611 इंग्लिश को मछली पसंद आई थी। इंग्लिश लव्स मीट, सो उनको मछली पसंद आई थी। मछलीपट्टनम में नहीं, मछलीपट्टनम में टेम्प्रेरी फैक्ट्री लगाया। मछलीपट्टनम में टेम्प्रेरी फैक्ट्री लगाया बट देयर परमानेंट फैक्ट्री इज़ एट सूरत। परमानेंट फैक्ट्री इज़ एट सूरत। परमानेंट फैक्ट्री इज़ एट सूरत। सर थॉमस रो विजिटेड जहांगीर कोर्ट टू रिसीव ट्रेडिंग राइट्स। 7 साल बाद आफ्टर 7 ईयर्स बाद, इसके 1608 के विलियम हॉकिंस के बाद, विलियम हॉकिंस के 7 साल बाद अगेन, थॉमस रो विजिटेड जहांगीर कोर्ट टू रिसीव ट्रेडिंग राइट्स। तो उसने रोया तो जहांगीर ने उसे ट्रेडिंग राइट दिया। उसने रोया तो उसे जहांगीर ने ट्रेडिंग राइट दिया, क्योंकि रो रहा था तो थॉमस रो रहा था, इसलिए उसे जहांगीर ने उसे ट्रेडिंग राइट दिया। तो थॉमस रो रहा था इसलिए जहांगीर ने उसे ट्रेडिंग राइट दिया। और थॉमस रो आया था शिप से जिसका नाम था हेक्टर शिप। थॉमस रो 7 साल बाद आया आफ्टर विलियम हॉकिंस, और जिस शिप से आया उसका नाम था हेक्टर। जिस शिप से आया उसका नाम था हेक्टर। तो 1608 में ऑफिशियली इंग्लिश आए, दैट इज इंग्लिश आए, इसका मतलब विलियम हॉकिंस केम इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर एंड आस्क्ड फॉर ट्रेडिंग राइट बट जहांगीर गेव 400 एनुअल मंसब प्लस 1 अर्मेनियन गर्ल। तो इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम, क्योंकि उनको मछली पसंद नहीं था तो टेम्प्रेरी बनाया। नेक्स्ट सूरत में परमानेंट बनाए। और आफ्टर 7 ईयर्स विलियम हॉकिंस के बाद थॉमस रो केम इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर एंड आस्क्ड फॉर ट्रेडिंग राइट, क्योंकि वो रो रहा था इसलिए जहांगीर ने उसे ट्रेडिंग राइट दिया। और जिस शिप से आया उसका नाम था हेक्टरशिप। डेंस एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। तो पोर्ट से आए डच होते रहे, इंग्लिश बोलना शुरू किए और दाना पानी। डेंस एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट टरंकाबाद तमिलनाडु। टैंक्योरबाद। डेंस एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट टैंक्योरबाद तमिलनाडु। डेंस एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट टैंकराबाद। Dens established their first factory at Tankarabad. Dens established their first factory at Tankarabad. Dens established their first factory. Dens established their first factory at Tankarabad, Tamil Nadu. Dens established their first factory at Tankarabad, Tamil Nadu. Dens established their first factory at Tankarabad, Tamil Nadu. Dens established their first factory at Tankarabad, Tamil Nadu. French established their first factory at Surat. French established 16 French, that is Alasta French is Alasta near French is Alasta near French is Alasta near Alasta 1668 Alasta. In 1668 French established their first factory at Surat. आते ही सूरत में फैक्ट्री लगाए। फ्रेंच एस्टैब्लिश क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच बोल के भारत का सूरत बदल दिया, तो फ्रेंच एस्टैब्लिश द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत 1668। तो हमारा टेम्प्रेरी फैक्ट्री लगाया, इंग्लिश में टेम्प्रेरी फैक्ट्री लगाया तो मछलीपट्टनम में 1611 एंड परमानेंट फैक्ट्री इन 13। परमानेंट फैक्ट्री लगाया और परमानेंट फैक्ट्री लगाया। इंग्लिश में परमानेंट फैक्ट्री लगाया। सबसे पहले टेम्प्रेरी फैक्ट्री लगाया मछलीपट्टनम में। फिर बैटल ऑफ सवाली, इंग्लिश ने बैटल ऑफ सैलो कराया। पोर्टुगीज को
सुवाली लड़ा 1612 में। बैटल ऑफ सुवाली लड़ा 1612 में। इंग्लिश 1608 में आया with William Hawkins in the court of Jahangir and asked for trading right, but he gives 400 annual mansab plus 1 Armenian. और 1611 में ही स्टैब्लिश फर्स्ट टेम्पल इफेक्टेड मछलीपट्टनम। 1611 के बाद 1612 में क्योंकि उनसे पहले इंग्लिश से पहले पोर्टुगीज आए थे और वो पहले से जम चुके थे, इसलिए उन्होंने बैटल सुवाली लड़ा और सोलो कराया पोर्टुगीज को सोलो कराया पोर्टुगीज को 1612 में। 1611 में टेम्पररी फैक्ट्री लगाया। 1611 मछलीपट्टनम बट दे डोंट लाइक दिस, दे लाइक मी। और 1612 में ही फाउट बैटल ऑफ सुवाली इसमें सोलो कराया पोर्टुगीज को सोलो कराया। एंड तब जाके 1612 में परमानेंट फैक्ट्री लगाया सूरत। और अगर हम बात करें डेंस की, तो डेंस एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री एट टंकराबाद तमिलनाडु। डेंस एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री एट टंकराबाद तमिलनाडु। एंड फ्रेंच एस्टैब्लिश आते हैं फ्रेंच फैक्ट्री लगाया, कहाँ पे परमानेंट फैक्ट्री लगाया 68 में। 1668 में फ्रेंच के साथ नहीं आता है तो 68 तो फ्रेंच लगाया एट बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच सूरत परमानेंट फैक्ट्री सूरत। नेक्स्ट है बैटल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे, बाकी जो भी पहले आया बाद में आए तो ब्रिटिश डोमिनेट कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ वॉर लड़ा और जीता। तो पहले हम देख चुके हैं बैटल ऑफ सुवाली, जिसमें सोलो कराया पोर्टुगीज को 12 में, तब जाके अपना परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश किया 13 में 1613 में एट सूरत। तो अनदर बैटल वाज बैटल ऑफ चिनुसारा, बेदरा और हुगली। 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 बी से चिन से डच को धरा। ओके, बी ने बेदरा, बी ने डच को धरा। बैटल ऑफ चिनुसारा, चिन के, बी ने चिन के डच को धरा। चिन के धरा, बी ने चिन के। बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा डच, बेदरा छीन के धरा डच को, ब्रिटिश ने छीन के धरा डच को, छीन के डच को धरा और बैट पे लिटाया चीन को। बेदरा छीन के डच को, इंग्लिश ने छीन के डच को धरा और बैट पे लिटाया। इंग्लिश ने छीन के डच को धरा और बैट पे लिटाया। इंग्लिश ने छीन के डच को धरा और बैट पे लिटाया। और हुगली that took place, Battle of Chinusara, Bedra और हुगली। Battle of Chinusara, Bedra और हुगली that took place on the battle of the banks of river Hooghly, in which British defeated Dutch. The British ने डच को छीन के डच को धरा और बेट पे लिटाया। बैटल ऑफ चिनुसारा, बैटल ऑफ हुगली एंड बैटल ऑफ बेदरा, in which British defeated Dutch. Battle of Kolachel, Battle of Kolachel, and another battle was Battle of Kolachel and between Martin King of Travancore, Tamil Nadu. Another Battle of Kolachel, another Battle of Kolachel and between Martin Varman. Another Battle of Kolachel, Battle of Kolachel in 1741, Battle of Kolachel in 1741 between Martin Varman, King of Travancore and Dutch East India Company. Battle of Kolachel between Martin Varman, King of Travancore and Dutch East India Company. Second, Port Saint से पानी उतरे। Battle of Kolachel
Battle of Kolachal, Battle of Kolachal, Battle of Kolachal between Martin Verman and Dutch East India Company, Battle of Kolachal, Battle of Kolachal, Battle of Kolachal, Battle of Kolachal between Martin Verman and King of Dutch East India Company. Battle of Kolachal, Battle of Kolachal in 1641 between Martin Verman and King of Martin Verman and King of Dutch East India Company, Battle of Kolachal between Martin Verman, King of Travancore and Dutch East India Company, Battle of Kolachal and 16 Martin Verman, King of Travancore and Dutch East India Company and Dutch East India Company, Battle of Kolachal, Battle of Kolachal, Battle of Kolachal between Martin Verman, King of Travancore and Dutch East India Company. Kolachal, Kola, Kola, Marthand, Marthand, and Kola, Dutch Kola, Kola, Dutch Kola. Battle of Kolachal, so Kola, Dutch Kola, Kola, Marthand, Thand, Mara, Hardcore, Travancore. तो कोला मारठंड कोला कोलाचल बैटल में कोलाचल कोला है कोला तो मारठंड ठंडा कोला को ठंडा बोलते हैं बैटल ऑफ कोलाचल तो कोला है तो मारठंड ठंड कोला को ठंडा बोलते हैं और कोला डच ने खोला कोला को डच ने खोला तो बैटल कोलाचल दैट इज कोला दैट इज ठंड मारठंड एंड डच ने खोला in which Martand-Varman owned, defeated Dutch East India Company, and Mara Travancore, King of Travancore. तो याद रहेगा Martand-Varman King of Travancore, King of Travancore. कोलाचल बैटल, कोला ठंडा, Martand-Varman मारठंड कोला जिसे ठंडा बोलते हैं एंड डच ने खोला कोला को डच ने खोला. नेक्स्ट इज Carnatic Wars important. Carnatic Wars between ये भी Carnatic Wars ने भी ब्रिटिश यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे. ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस में हुआ. नाटक के लिए दो फेमस है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच. कर्नाटक वॉर्स तो नाटक के लिए दो फेमस है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच. नाटक के लिए दो फेमस है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच. तो इम्पोर्टेंट 44-48 5-6-12-15 44 से 5-6-12-15 44-48 17-44 17-44 5-6-12-15 5-6-12-15 5-6-12-15 5-6-12-15 44-48 44-48 5-6-12-15 5-6-12-15 44-48 5-6-12 17-44 44-48 5-6-12-15 17-44 5-6-12-15 17-44 5-6-12-15 17-44 5-6-12-15 17-44 5-6-12-15 17-44 5-6-12-15 17-44 5-6-12-15 17-44 5-6-12-15 17-44 5-6-12-15 17-44 5-6-12-15. The series of Carnatic Wars started between British and French East India Company. Total of three Carnatic Wars was fought between 1744 से लेकर 12-15 44 में 15 जोड़ लीजिए 48 में 15 3-63 1763 48 में 15 5-6-12-15 तो 48 में 15 63 44 48 5-6-12-15 5-6-12-15. First Carnatic War 1744 First Carnatic War 1744 which French owned
and British defeated and English defeated. First ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle. 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 A total of 3 Carnatic wars duplex led by दो ब्रिटिश फर्स्ट और सेकंड कार्नाटिक वॉर्स में ब्रिटिश को रिप्रेजेंट किया, फ्रेंच को रिप्रेजेंट किया डुप्लेक्स ने, फ्रेंच को रिप्रेजेंट किया डुप्ले ने, फ्रेंच को रिप्रेजेंट किया डुप्ले ने, फ्रेंच को रिप्रेजेंट किया डुप्ले ने, उससे डुबाया, फ्रेंच को डुबाया। डुप्लेक्स लेड द फ्रेंच फोर्सेस इन फर्स्ट 2 कार्नाटिक वॉर्स और फ्रेंच को डुबाया नाटक में, फ्रेंच को डुबाया नाटक में। डुप्लेक्स लेड द फर्स्ट 2 कार्नाटिक वॉर्स और फ्रेंच को डुबाया नाटक में। First Carnatic War ended with the treaty in which French won and British defeated Aix-la-Chapelle मतलब टीपू सुल्तान ने, Aix-la-Chapelle टीपू सुल्तान ने, Aix-la-Chapelle टीपू सुल्तान ने। Second Carnatic War 17 44-45 500 49 48 6 54 48 54 49 started the Battle of Ambur. Won by Britishers and second ended with the Treaty of Pondicherry. यहाँ भी फ्रेंच जीता बट फिर मद्रास लौटा दिया ब्रिटिशर्स को ड्यू टू डिफीट इन यूरोप The series of Carnatic wars started between British and French East India Company. A total of 3 Carnatic wars was fought between 1744 से 5 12 15 15 48 15 63 1763 Dupleix led the French forces. Dupleix led the French forces in first 2 Carnatic wars और फ्रेंच को डुबाया न कटाया। Okay. The first Carnatic War 44-48 ended with Treaty of Aix-la-Chapelle और फ्रेंच ने ब्रिटिश को चपले मारा। फ्रेंच ने इसमें ब्रिटिश ने जीता और फ्रेंच जीता और उन्हें चपले मारा और फ्रेंच जीता और फ्रेंच जीता। फ्रेंच ने ब्रिटिश को चपले मारा, 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 फ्रेंच ने ब्रिटिश को चपले मारा। ओन बाय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड कर्नाटिक वॉर्स 5-6 तो 44 हो गया, 5 तो 49 हो गया, 6 हो गया उधर 48 से 6 तो 54 हो गया। 49-54 started with second Carnatic War started with the Battle of Ambur. Second Carnatic War started with the Battle of Ambur, won by Britishers, and second ended with the Treaty of Pondicherry. Second ended with the Treaty of Pondicherry. यहाँ भी फ्रेंच ने सेकेंड कर्नाटिक वार में फ्रेंच ने जीता, बट फिर मद्रास लौटा दिया ब्रिटिशर्स को ड्यू टू डिफीट इन यूरोप। ये ई है यूरोप, ड्यू टू डिफीट इन यूरोप। थर्ड कर्नाटिक वार डेट इज 12-15 तो 12 हो जाएगा 44 से 12 56 और 15 64 15 63
1763 बैटल ऑफ वांडी वॉस, इसमें फाइनली वॉश कर दिया, फाइनली नाटक वॉश हुआ। बैटल ऑफ वांडी वॉस से फाइनली नाटक वॉश हुआ, जो नाटक छिड़ा था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच वो वॉश हुआ। बैटल ऑफ वांडी वॉस, थर्ड कर्नाटक वॉस, बैटल ऑफ वांडी वॉस से फाइनली नाटक वॉश हुआ। पार्ट ऑफ थर्ड कर्नाटक वॉर was a part of third Karnataka war 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 Karnataka was was a part of third Karnataka war was a part of third Karnataka war Battle of Bondi was Battle of Bondi was a part of third Karnataka war. This war was an extension of Anglo-French War of Years. Okay. Third Karnataka War, Battle of Bondi was Third Karnataka War, Battle of Bondi was when नाटक वॉश हुआ। Battle of Bondi was नाटक वॉश हुआ। नाटक वॉश हुआ। Battle of Bondi was a part of the Battle of Bondi was 1760 Battle of Bondi was 1760 was part of the Third Karnataka War. This war was an extension of Anglo-French War of Succession. This war was a extension of Anglo-French War of 7 years, which were caused by Austrian War of Succession. ऑस्ट्रिया में जो अदर कॉलोनीज में ब्रिटिश और फ्रेंच के अदर कॉलोनीज में जो वार छिड़ा हुआ था, दिस वार वॉज एक्सटेंशन ऑफ, उसी का ये नतीजा था कि थर्ड हुआ यहाँ पे। दिस वार वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार ऑफ 7 years which were caused by ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच लड़ रहे थे। दिस वार वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ, ये उसी का एक्सटेंशन था, मतलब जो ब्रिटिश बाहर हो रहा था उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे हुआ। थर्ड कर्नाटक वॉर between two colonies British and French, two colonies थर्ड एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में पेरिस और फ्रेंच हार गए। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस में लास्ट में फ्रेंच हार गए, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, लास्ट में फ्रेंच हार गए, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। थर्ड में फूटा यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस, थर्ड में ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाई सर आयरफोर्ट, डिफरेंट फ्रेंच फोर्सेस लेड बाई कॉम्प्टी डे लैली। थर्ड में डुप्लेस लीड नहीं करा था, कॉम्प्टी डी लैली सर ने कोटा लैली को सर ने कोटा लाले को लाले को लाले 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 कोटा लाले को सर ने कोटा लाले को सर ने कोटा लाले को। थर्ड में सर ने कोटा लाले को, थर्ड में सर ने कोटा लाले को, सर आयरफोर्ट सर ने कोटा लाले को। और फर्स्ट टू में था डुप्लेस, फर्स्ट टू में था डुप्लेस। थर्ड कर्नाटिक वॉर में था फ्रॉम ब्रिटिश साइड सर आयरफोर्ट एंड फ्रॉम फ्रेंच साइड कॉम्प्टी डे लैली तो सर ने कोटा लाले को, तो इसे देखेंगे कर्नाटक वॉर। कर्नाटक के लिए दो फेमस है, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। उसका टाइमलाइन है 44-48-512 44-48 1744-512। तो दिस सीरीज ऑफ कर्नाटिक वॉर स्टार्टेड विद ब्रिटिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टोटल फ्री कर्नाटक वॉर फॉर 1744 से लेकर 1763 तक। टोटल प्लेयर पर फ्रेंच फोर्सेस ब्रिटेन एंड लीड फ्रेंच फोर्सेस इन द फर्स्ट कर्नाटक वॉर। फ्रेंच को डुबाया नाटक में, फ्रेंच को डुबाया नाटक में, फ्रेंच को डुबाया नहीं नाटक में, डुबाया नहीं दोनों में दिखाया, डुबाया नहीं नाटक में, फ्रेंच डुबाया नहीं नाटक में, फ्रेंच को डुबाया नहीं। अब डुप्ले में नहीं डुबाया बल्कि जिताया, और कॉम्प्टी डी लैली ने हराया लास्ट में। डुप्ले लेड द फ्रेंच फोर्सेज इन द फर्स्ट टू कर्नाटक वॉर। फ्रेंच को डुबाया नहीं नाटक। द फर्स्ट कर्नाटक वॉर 44-48 और फर्स्ट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ कास्टासपेला। और फ्रेंच में ब्रिटिश में चपले मारा, और फ्रेंच में ब्रिटिश चपले मारा। ओन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड कर्नाटक वॉर 5 हो, तो 5 हो गया हमारा 49 6 हो गया 64 49 64 54 49 54 सेकंड कर्नाटक वॉर स्टार्टेड विद द बैटल ऑफ कंबोज। सेकंड कर्नाटक वॉर स्टार्टेड विद द बैटल ऑफ कंबोज ओन्ड बाय ब्रिटिशर्स फाइनली।
Battle of Ambur. Second Karnataka War started with the Battle of Ambur. Ambur. Second Karnataka War. Second Karnataka War started with the Battle of Ambur. Second Karnataka War. First Karnataka War ended with the Extra Chevrolet. And second Karnataka War started with the Battle of Ambur, won by Britishers, but not really. But not really. But not really. Second ended with the Treaty of Pondicherry. Second ended with the Treaty of Pondicherry. Second ended with the Treaty of Pondicherry. और यहाँ पौंडीचेरी मतलब बोला कि सेकंड में राजा फ्रेंच भी थे, लेकिन ब्रिटिश यहाँ भी फ्रेंच भी थे। पौंडीचेरी मद्रास बैठा दिए, मद्रास बैठा दिया ब्रिटिश को डिसिप्लिन यूरो। और तब इंग्लिश ने बोला कि तुम पौंडीचेरी में ट्रेड करोगे, और फिर पौंडीचेरी में ट्रेड करोगे, और फिर इंग्लिश ने बोला कि तुम पौंडीचेरी में ही ट्रेड करोगे, पौंडीचेरी में ट्रेड करोगे। सेकंड कर्नाटक वार Pondicherry, Battle of Pondicherry, but not really. Second Carnatic War, Battle of Pondicherry, and Treaty of Pondicherry. Third Carnatic War 12-15, तो 12 हो गया, 44-56, 15 हो गया, 63, 56, Battle of Vandivar. So you started with the third Carnatic War, started with the Battle of Vandivar, जिसमें was इसमें सर ने पता लाली को सर आर को फ्रॉम ब्रिटिश सर आर को फ्रॉम ब्रिटिश and Lally from French and Lally from French तो सर ने पता लाली दिस वार the third कर्नाटक वार था वह स्ट्रेंथन था एंग्लो फ्रेंच वार का 7 सालों का जो कि ऑस्ट्रिया में हो रहा था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच थर्ड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस थर्ड जब एंड हुआ third ended with the Treaty of Paris. Third ended with the Treaty of Paris. Sir ने पता लाली को British forces led by Sir I could defeated the French forces led by competitive Lally और Pondicherry Battle of Pondicherry. Second Carnatic Treaty of Pondicherry. सेकंड का कहानी यह है कि सेकंड में भी फ्रांस शुरू की था ब्रिटिश को हराया, लेकिन यूरोप में हार जाने के कारण फिर लौटना पड़ा मद्रास। और इस तरह ब्रिटिश ने केवल पौंडीचेरी में उनको रूल करने के लिए दिया। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ। नेक्स्ट इन बंगाल तो मुर्शिद कुली नवाब ऑफ बंगाल Murshid Quli Khan was the first Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan was the first Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan was the first Nawab of Bengal. And Siraj-ud-Dawla was the last Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan was the first Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan was the first Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan was the first Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan was the first Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan was the first Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan was the first Nawab of Bengal. कुछ देर के लिए लाइट बंद हो गया था, सेकेंड एंड थर्ड कर्नाटक बंद हो गया। इन बंगाल देख लो, कर्नाटक और ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। नाटक में दो फेमस हैं, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। दिस सीरीज ऑफ कर्नाटक वॉर्स बिटवीन the series of Carnatic War started between British and French East India Company. Total of 3 Carnatic Wars was fought between 1744 से लेकर 1763, 44, 48, 512-15। Dupleix led the French forces in first two Carnatic Wars.
फ्रेंच को और डुप्लेक्स ने फ्रेंच को डुबाया नहीं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर 44-48 एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सेसिबल और फ्रेंच ने ब्रिटिश के 26 गोली मारा ऑन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड कर्नाटक वॉर बिटवीन 5-6 तो 44 में 5 जोड़ा गया तो 49 और 48 में 6 जोड़ा गया तो 54 तो 1749 1754 started with the Battle of Ambur. Second started with the Battle of Ambur. Second started with the Battle of Ambur and ended with the Treaty of Pondicherry. इसमें भी फ्रेंच जीता लेकिन यूरोप में आ जाने के कारण उसे मद्रास फिर से वापस करना पड़ा ब्रिटिशर्स को एंड 10 इस प्रकार से बैटल ऑफ पौंडीचेरी हुआ। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ जिससे ब्रिटिश ने केवल फ्रेंच को पौंडीचेरी में रूल करने को कहा। थर्ड कर्नाटक वार 12-15 तो 12 हो गया हमारा 48 से 12-56 और 15 हो गया 53 बैटल ऑफ मॉन्टेवास। इसमें बैटल ऑफ मॉन्टे स्टार्टेड विद द बैटल ऑफ मॉन्टेवास। इसमें वॉस हुआ सारा नाटक है जिसमें ब्रिटिशर्स जीते फ्रेंच हारे। तो थर्ड कर्नाटक वार में इंग्लिश को रिप्रेजेंट करा था सर एयरपोर्ट और फ्रेंच को रिप्रेजेंट करा कॉम्टे डे लाली फ्रेंच नाम है। लाली फ्रेंच नाम है और इसमें सर ने कोटा लाली को एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। और जो थर्ड कर्नाटक वार था वो एक्सटेंशन था एंग्लो फ्रेंच वार का जो 7 सालों से चला था ऑस्ट्रिया में और इसी का रिजल्ट है यहाँ पे भी। नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल तो मुर्शिद कुली खान वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल एंड सिराजुद्दौला वॉज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान served as the first Nawab of Bengal. 1717 मुगल एम्पायर इन 1716 मुगल एम्पायर 1717 में मुगल एम्पायर फारूक शेर issued a golden फरमान खुश होके ब्रिटिश से कि उसको क्योर किया था फ्रॉम वॉन्ड क्योंकि ब्रिटिश ने इसको क्योर किया था फ्रॉम वॉन्ड। इससे खुश होके फारूक शेर मुगल एम्पायर वॉज मुगल एम्पायर इन 1716। फारूक शेर issued a golden फरमान that is Magna Carta of Trade. Golden फरमान Magna Carta of Trade that allowed the British East India Company to trade freely in Bengal for a yearly payment of 3,000 rupees। 3,000 का सालाना दस्तक 3 महीने का सामान पे। द फरमान ऑल्सो ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू इशू दस्तक और इस फरमान में इंग्लिश को राइट दिया गया दस्तक इशू करने के लिए। इस फरमान ऑल्सो ग्रांटेड द कंपनी टू द राइट टू इशू दस्तक। 1717 में फारूक शेर इशूड अ गोल्डन फरमान दैट इज मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड। इसमें अलाउ किया ब्रिटिशर्स को टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल एंड इशूड दस्तक or trade permit to move goods. A trade permit. The farmer also granted the company the right to issue dastak and trade permit to move goods and trade permit to move goods that allowed British East India Company to trade freely in Bengal with a yearly payment of 3,000 rupees. In 1717 Mughal Emperor Farooq Shear issued a golden Farman Magna Carta of Trade that allowed the British East India Company to trade freely in Bengal for a yearly payment of 3,000. The Farman also granted the company the right to issue dastaks or trade permit to move goods. Sirajuddaulah, he became the Nawab. He was the last Nawab of Bengal. Sirajuddaulah was the last Nawab of Bengal. He became the Nawab at the age of 23. After the death of Ali Wardi Khan. After the death of Ali Wardi Khan, as you can see, the second last Nawab was Ali Wardi Khan. The second last Nawab of Bengal was Ali Wardi Khan. After the death of Ali Wardi Khan, Sirajuddaulah. After the death of Ali Wardi Khan, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal at the age of 23. After the death of Ali Wardi Khan.
After the death of Ali Wordi Khan, Sirajuddaula became the last Nawab of Bengal. He became the Nawab of Bengal at the age of 23. He became the Nawab of Bengal at the age of 23 after the death of Ali Wordi Khan.